So, hello, hi, most welcome in your own class on your own channel StanfordiS. StanfordiS बोले तो English speaking, जहाँ अब हर कोई बोलेगा इंग्लिश में, because you people are learning speaking on StanfordiS. So, most welcome in today's class. आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में StanfordiS में। देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन के साथ आया हूँ। देखते हैं कि आज के लेसन में क्या क्या चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक फटाफट सा क्विक रिव्यू लेते हैं, क्विक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर आज की क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यस, सो प्लीज हैव अ लुक। सबसे पहले हमारे लेसन का नाम है सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्चर ग्रामर सेक्शन के दौरान बताया था, मैंने उस समय ये भी बताया था कि इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान हम ग्रामर की बात करेंगे और ग्रामर के टाइम पे भी हम इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आज टाइम है कुछ ग्रामेटिकल करने का। देखिए क्या है, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेंटेंस स्ट्रक्चर. We are going to add up some more knowledge, some more things in our previous learning during grammar section. So please have a look here. First of all, we will recap of lesson number 19, learning a language. We will recap learning a language. Later on, we'll answer the last question of the day. What was our last Q&A? Yes, remember it. Now, we will talk about today's question of the day. What is our today's question of the day? Think about it. I will tell you. Then we will talk about sentence structure. That is, what is sentence structure? What is the benefit of learning? What are the benefits of learning sentence structure? How can we write correct format of a sentence? Now, we'll go for punctuation, then we'll go for capitalization, then we'll understand importance and better use of punctuation and capitalization. Today we will know what are the benefit and loss of using or not using punctuation and capitalization. Then we will learn by a video Mr. Air that what is importance of listening. How can we understand more by listening? What is the difference between listening? What are the different types of listening? So we'll talk about it later on. Then we'll talk about correct use of comma. What is correct use of comma? What is comma? And what are the common use of comma, and what are some basic rules to use comma? We'll talk about rules of comma. Then we'll learn what is proofread. Yes, what is proofread? How can we proofread? So we'll discuss about this thing also. Okay, later on we'll go for rating of this lesson. You'll rate that did you learn anything? What did you learn? Is it important lesson or not? We will discuss upon it. Later on, next lesson, be a top editor. We'll talk about next lesson, what is our next lesson and what are the benefits. So it's before we go and learn new things today, why don't you people write in comment section that what did you learn in the last class? Please write in comment section that what did you learn in the last class? What did you learn in the last class? Please recap, because today our first topic is recap of the last lesson. So please recap it fast. Please do it fast. Then I will tell you that what did we learn in the last class. So people, our last lesson was lesson number 19, learning a language. So in that lesson we knew many things. We learned that how can we learn a language. लास्ट लेसन में हमने सीखा कि हमें इस लैंग्वेज को सीखनी कैसे चाहिए। हमने अपनी मदर टंग, आवर ओन लैंग्वेज, मदर टंग हिंदी को हमने कैसे सीखा है,
और वो जो सीखा है हमने उसमें कितना टाइम लगा है, कितना एफर्ट लगा है, उसके बारे में हमने बात करी। फिर हमने बताया कि कैसे साइकिल सीखते हैं, क्या साइकिल हम किताबों से सीखते हैं, क्या साइकिल हम ग्रामर की बुक, साइकिल के कुछ रूल्स की किताब है क्या साइकिल सीखने से पहले हम रूल्स बनाते हैं क्या, नहीं बनाते हैं ना। तो उसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग को भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करा। हमने बात किया कि कैसे बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ प्रैक्टिस के ग्राउंड पे एक नेटिव स्पीकर जिस तरीके से इंग्लिश को सीखता है अपने बचपन में, वैसे एक स्मॉल बेबी की तरह हम लर्न इंग्लिश लैंग्वेज को सीखेंगे, एक स्मॉल बेबी की तरह। क्योंकि इस इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मातृभाषा तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये भाषा, इस भाषा के लिए हम बच्चे हुए। अगर हमें इंग्लिश भाषा नहीं आती है तो, है कि नहीं, तो हमें क्यों ना इसको भी एक बच्चे की तरह सीखना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज को सीखता है तो हमें उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और उसी मेथड का इस्तेमाल CFR बेंचमार्क करता है आपको सिखाने के लिए, और कुछ बेंचमार्क सेट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कि आपको इस लेवल पे बेसिक में कितना आना चाहिए, इंटरमीडिएट में कितना आना चाहिए और एडवांस में कितना आना चाहिए। और वो आएगा कैसे ये भी बताता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। एंड वी ट्रेन यू पीपल, एक्चुअली वी ट्रेन यू पीपल, यू पीपल must be masters। हम लोग ट्राई करते हैं कि आप लोग को किसी तरीके से भी एकदम मास्टर बना दें कि हाँ, मैं रहूं ना रहूं, आप भाषा को सीख लो, लर्न कर सको बिना किसी की मदद के। तो हम आपको भाषा नहीं सिखाते हैं, हम आपको ये सिखाते हैं कि अंग्रेजी भाषा को सीखते कैसे हैं। क्योंकि लर्निंग जो होती है एक समय की चीज़ नहीं होती है, ज़िंदगी भर इंसान सीखता है। अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो सीखने के, तो आप ज़िंदगी भर उस चीज़ में सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वाज, हाउ मेनी मेंबर्स डू योर फैमिली हैव? आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो इफ आई विल आंसर, देन सी हाउ विल आई आंसर। In my, I have 6 members, not 6, now I have 7 members, 7 members in my family. Okay, so if I talk about family, then people who live with us, we are always counting those people. So in my family there are 2, 2, 4, 5 and 6. So we have 6 members in our family: father, mother, पापा मम्मी, I, myself, मैं खुद, my wife 4, now my young brother 5, and my one auntie, she's also living with us. So I have 6 members in my family. How many members do you have in your family? I hope you answered in the last class, right? So let's have a look what is our today's question of the day. Today's question of the day is very interesting, very interesting. So let's have a look, people. As you know that we are moving towards completion of our course, so I will try to speak more English, less Hindi, but I will speak Hindi somewhere where I will feel that you will not understand. Or in the chat section, if you are writing that, sir, what is this, what is the meaning of this topic, then I will explain that thing in Hindi if you want. So today's question of the day is, how did you learn हिंदी? मीन्स जो भाषा आप बोलते हो, हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना मोस्टली, इंग्लिश भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, और कुछ जगह पे हिंदी इंग्लिश उर्दू मिक्स बोलते हैं। तो हाउ डिड यू लर्न हिंदी? आपने हिंदी कैसे सीखी? क्या पैदा होते ही आपको किताबें दे दी गई, ग्रामर के बुक्स दे दिए गए? Did you get grammar books and lots of bunches of rules that, listen kid, speak next word like this? Did someone said this thing? Did somebody say this thing? Yes, no? Think about it and answer this question on today's Zoom session. In today's Zoom session, you are going to answer this question: how did you learn Hindi?
आपने हिंदी कैसे सीखी? So this is your today's question of the day. So we are going to do a lot of things in today's Zoom class. Very first thing, we are going to do books exercise, then presentations, then group discussions in breakout room, then rapid fire round by me. Later on, audio video round. Yes, we have a fantastic video graphic that is fantastic. You will learn a lot from that video, so be ready for that on Zoom. People who don't have my number, please note down my number: 888-222-8755. जो लोग भी अभी तक हमारे जूम लिंक नहीं, मतलब जिनके पास ही हमारा जूम लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं है, प्लीज 8882228755 पे अपना पूरा नाम, जगह का नाम लिख के भेजिए. आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक. दूसरा जूम का लिंक. व्हाट्सएप ग्रुप पे हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जूम पे हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है. और अगर आपके पास ये दोनों लिंक होगा तो जाहिर सी बात आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाओगे. तब आपका सर्टिफिकेशन भी होगा CA के थ्रू, और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा 90 दिन पूरे करने पे. नाउ प्लीज नोट डाउन माई नंबर 8882228755. So people, let's move towards the next thing. So this is your question of the day. I hope you noted it down. Let's move towards the topic number 4. Point number 4. Let's move. Let me erase it, delete it, wipe it out, and then we will go for the next thing, that is sentence structure. Please write in comment section what do you understand by sentence structure. आप सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट. What do you understand by sentence structure? What is sentence structure? Please write in comment section. So थोड़ा मैं पानी पी लूँ. Let me drink some water. So please write in comment section, क्योंकि हमने इस ग्रामर सेक्शन के दौरान आखिरी दिन में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करा था और हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर भी किया था. So please write. प्लीज बताइए व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेकर? What do you understand by sentence structure? So what do you understand by sentence structure? Please tell me. I hope कि आपने वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोका होगा और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखा होगा that what is sentence structure. So people, please look at it. The correct form. What is sentence structure actually? The correct way of writing sentence is called sentence structure. वाक्यों को सही रूप में लिखना sentence structure कहलाता है. I hope this thing is clear to you. Now, next thing. Structure. वाक्यों को सही रूप. So I was just checking that video is audible or not. So here, first thing, second thing. Sentence structure tells us that how can we write a meaningful sentence. सेंटेंस स्ट्रक्चर ये भी बतलाता है कि हम वाक्यों को मतलब ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखें कि उसका कुछ अर्थ निकले, कुछ मतलब निकले, कुछ मानी हो. वरना तो कोई भी वर्ड कहीं पर कोई भी लिख दे तो क्या ये सेंटेंस हो गया? ईट बनाना वाई डिड, और कोई ऐसे बोल दे ईट बनाना वाई डिड, ये भी तो सेंटेंस मतलब सेंटेंस टाइप से हो गया. बहुत सारे वर्ड्स आ गए तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, वो बोलेगा नो. अब देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर का काम क्या है. व्हाट इज द जॉब ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर? लेट्स हैव अ लुक. सो सपोज दैट somebody is speaking, eat, I.
सो किसी ने बोला ईट आई, बोला कि हमने दो दो वर्ड्स लिख दिए तो ये तो सेंटेंस हो गया ना। सो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, वो बोलेगा नो, द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर अ सेंटेंस इज फर्स्ट यू राइट सब्जेक्ट देन यू राइट वर्ब। क्या कह रहा है, पहले आप सब्जेक्ट को लिखोगे फिर आप वर्ब को लिखोगे। ये हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर भाई साहब आके समझाते हैं। ओके, वी आर डूइंग दिस मिस्टेक, सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस person will write this thing again, and now subject will come first then our verb. So this is I eat. तो इस तरीके से इन वर्ड्स को सजा दिया गया सेंटेंस स्ट्रक्चर के कहने पे, और ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। अब इसका कुछ अर्थ है, इसका कुछ मतलब है अब, ठीक है। So now we have some basic structure of the sentence which we should know. I already taught this thing in grammar section. If you didn't complete grammar section, please start from day 1. So basic structure, the very first structure says subject plus verb, means example I teach, मैं पढ़ाता हूँ। Now second structure of the sentence will say subject plus helping verb plus verb, and this is also called main verb. So now example, I will teach, So now here we have subject, we have helping verb, we have verb, main verb. So here you can see we have two such basic structures. The first one without helping verb, second one with helping verb. Now we have one more basic structure, that is subject plus helping verb plus not plus main verb. So you can see we have three types, three basic structure, okay, for sentences. Now first one, subject plus verb, I eat, example, मैं खाता हूँ. Now second structure is saying subject plus helping verb plus main verb. Here I will teach. Now we have another basic structure, that is he does not eat. So now here we can see we have a subject he, then helping verb does, then not, then eat. This is a negative sentence. These are positive sentences, affirmative, and this is our negative sentence. So this is the basic structure of the sentence. If you didn't complete our grammar section, please start from day 1 and complete to day 24. Day 1 to day 24 we have done what we have done. We have done grammar section, tenses, translations. So these are the things which we need to learn before English speaking. If you are a real zero learners, if you are a zero level learner, then you need grammar at any cost. Now people, I hope you understood the basic structure. I hope you must wrote this one, this part and this part. Please note down in your notes. Now let me delete this part and let's move towards our next very interesting point. Our next
I'm going to write a sentence. Please tell me what is the meaning of this sentence. Let's eat dad. So the sentence is saying let's eat dad. तो ये जो मैंने लाइन लिखा है लेट्स ईट डैड, इस लाइन से आपको क्या समझ में आता है? प्लीज अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको इस सेंटेंस से क्या करने को कहा जा रहा है, या इससे आपको क्या समझ में आ रहा है। पहला जो दिमाग में पहला इंप्रेशन आ रहा है, पहली बात जो दिमाग में आ रही है, उसको फटाफट कमेंट सेक्शन में अभी का अभी लिख दीजिए। अभी के अभी राइट इन कमेंट सेक्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट्स ईट डैड। What is the meaning of let's eat dad? इस सेंटेंस, इस वाक्य का क्या मतलब है? प्लीज कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखें। प्लीज डू इट फास्ट। आई होप आपने लिखा है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखते हैं कमेंट सेक्शन की बात को अब रहने देते हैं। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को देख के ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है चलिए बाबूजी को खा जाते हैं, है कि नहीं? पापा को खा जाते हैं, अब्बू को खा जाते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या लग रहा है? लेट्स ईट डैड, चलो बाबूजी को खा जाए। यस। तो समझिए कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जबकि कहा जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ हम लगाएंगे और देखिएगा मीनिंग विल टोटली चेंज। वी आर गोइंग टू यूज अ पंक्चुएशन। वी आर गोइंग टू यूज punctuation. There are many students who never use punctuation. This is really bad. See how blunder is there. So now when we will use comma here and full stop here, two punctuations we'll use, then what's the meaning? Let's eat, चलिए खाएं dad. ये हो गया let's eat, चलिए खाएं, चलिए खाने dad. तो कोई कह रहा है डैड से, बाबूजी से कोई कह रहा है लेट्स ईट, चलिए खाना खाने चलते हैं। बात समझ में आई? तो एक कॉमा ऑफ के लगने से मानी में, इसकी मीनिंग में हाउ ह्यूज डिफरेंस इज देयर। डिड यू नोटिस हाउ इम्पॉर्टेंट आवर पंक्चुएशंस आर? हमारे लिए पंक्चुएशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं कि किसी भी सेंटेंस के मानी में ज़मीन और आसमान का फर्क हो सकता है। अब देखिए इसी कॉमे के वजह से, अगर ये कॉमा नहीं था तो ऐसा लग रहा था लेट्स ईट डैड, कोई बाबूजी को ही खाने जा रहा है। लेकिन जब ये कॉमा लगा तो हो गया लेट्स ईट, चलिए खाते हैं डैड। ठीक है। और बहुत से लोगों को कॉमा का हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। तो देखिए जो ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप पे हमें ज़्यादा देर के लिए रुकना होता है। वी नीड टू होल्ड फॉर मोर सेकेंड्स। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 5 सेकेंड का होल्ड लेंगे तो कॉमा पे कम से कम 2.5 सेकेंड का होल्ड जरूर लेंगे। बहुत से लोग जैसे कोई आंसर ही पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो आता है तो पे थोड़ा सा रुकते हैं ना। जस्ट लाइक दैट कॉमा इज हियर इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में कॉमा वही काम कर रहा है। तो अगर हम 5 सेकेंड के लिए फुल स्टॉप पे रुकते हैं तो 2.5 सेकेंड के लिए कॉमे पे रुकेंगे। जैसे कि लेट्स ईट डैड, लेट्स ईट डैड। तो एक स्टॉपेज होना चाहिए कॉमे के साथ। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। और इफ यू आर गोइंग टू मेक अ क्वेश्चन, प्लीज राइट क्वेश्चन मार्क, नेवर अवॉइड क्वेश्चन मार्क। सो हाउ आर you people? How are you? So don't miss to write question mark here. So always use question mark whenever you are using or going to ask a question. Now when you are using a sentence, use full stop. This is called full stop and this is comma. This is comma. So I hope you understood this part, people. So let's erase it first. I have one more interesting sentence for you all. See how punctuations are very, very important. See how punctuations are very, very important. So next sentence for you all is I like
cooking my family, friends and dogs. So what is the meaning coming out of here? Because we didn't use any punctuation, so what is the meaning coming out? Please write in the comment section your first response. जो भी बात आपके दिमाग में पहले टन से ऐसी हो रही है उसको comment section में जल्दी से जाके लिख के आओ फटाफट. So here what is the meaning is coming out that I like, मैं पसंद करता हूँ, I like cooking my family, friends and dogs. I like cooking my family, friends and dogs. I like cooking my family, friends and dogs. अगर कोई पंक्चुएशन नहीं होगा तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि मुझे पसंद है पकाना अपने परिवार को, दोस्तों को और कुत्ते को. सो पका के क्या करेगा, कोई खाएगा क्या? आदमखोर को तो उसकी कुटिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी. तो समझिए, आई लाइक कुकिंग माई फैमिली, फ्रेंड्स एंड डॉग्स. तो क्या मिस हो रहा है यहाँ पे? 10 seconds for you. Decide what is the missing part of this sentence. What can we add to make it a meaningful and sensible sentence? देखिए, ग्रामेटिकली ये गलत नहीं है पर इसका मीनिंग गलत है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग पंक्चुएशन. हमने पंक्चुएशन यूज नहीं किया है तो ग्रामेटिकली ये सही है बट स्टिल सेंसिबल नहीं है. सेंसिबल, इट इज नॉट सेंसिबल, इट इज नॉट इन द करेक्ट सेंस ऑफ मीनिंग, बट इट इज right and correct as per grammar because you are using subject, verb and here noun and noun. So you are using the correct format. You are correct as per grammar, but because of sense, it is sensible. You are going to cook your family, friend and dogs. What is this? आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, डॉग्स को पकाओगे जा करके. हाउ इरिटेटिंग. सो हियर पीपल, उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा सही करने का. तो देखिए क्या इसमें यूज कर सकते हैं. व्हाट कैन वी यूज टू मेक इट सेंसिबल? आई लाइक कुकिंग, होल्ड माई फैमिली, होल्ड फ्रेंड्स, होल्ड एंड डॉग्स. सो दिस इज शोइंग दैट आवर सेंटेंस is at the end. It's showing that sentence खत्म हो चुका है. So now how will we read? I like cooking my family, friends and dogs. I like cooking my family. मैं पसंद करता हूँ कुकिंग, खाना बनाना, मेरे परिवार को, दोस्तों को और कुत्तों को. वो बसंती मत नाचना वाला फीलिंग आ गया था थोड़ी देर के लिए, तो बसंती को रहने देते हैं. बात करते हैं सेंटेंस की. आई लाइक कुकिंग, मैं पसंद करता हूँ खाना बनाना, माई फैमिली को, परिवार को, दोस्तों को और कुत्तों को. देन हाउ डिड यू नोटिस समथिंग दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज टू नो एंड यूज पंक्चुएशन. आई होप आपको समझ में आया है कि पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. How much it is important to use punctuation. क्योंकि एक पंक्चुएशन के ना होने से मीनिंग का कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है. So people don't ever miss punctuation. Please try to use punctuation as much as it is required. It is required. समझ में आया रिक्वायर्ड का मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पंक्चुएशन, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हो सकता है करें. अब हद से ज़्यादा भी ना करें कि बस डायबिटीज़ हो जाए. हर चीज़ को उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी की ज़रूरत है. अब हमने कॉमा यहाँ इस्तेमाल किया. अगर कोई बच्चा सोचेगा अच्छा ज़्यादा कॉमा लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मीनिंग, तो यहाँ भी लगा देगा, यहाँ भी लगा देगा, तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? तो बहुत ज़्यादा यहाँ लगा करके सेंटेंस ही ख़राब नहीं करना है. सेंटेंस में कॉमा की जगह यहाँ थी और फुल स्टॉप की जगह यहाँ थी, तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है. तो वी नीड टू यूज पंक्चुएशंस वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू यूज. जहाँ पे इसका इस्तेमाल होना बहुत आवश्यक है, वी विल यूज. एंड बिकॉज ऑफ दिस योर राइटिंग एंड स्पीकिंग बोथ विल अफेक्ट.
इसकी वजह से पंक्चुएशन के इस्तेमाल से आपका इस राइटिंग पार्ट भी बहुत निखरता है और स्पीकिंग भी निखरता है और सही होता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं बोलते भी वैसे ही हैं. इफ़ योर राइटिंग इज गुड देन योर स्पीकिंग विल बी फैंटास्टिक, and if your speaking is fantastic then somewhere you will start writing correct, right? So here let's have a look on the next point. Let me delete it first. Before deleting, let's have a look on our exercise B. We have one exercise B on this point, so please have a look people. We are going to complete exercise B. So here we have before comma full stop. So before telling comma full stop, okay wait, let me teach you one more thing. Okay, I taught you just कि सेंटेंस होगा तो फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमा, और क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, राइट? सो प्लीज हैव अ लुक हियर. एक्सरसाइज बी क्या कह रहा है प्रूफ रीड करने के लिए? क्या कह रहा है? फुल स्टॉप इफ इट इज अ स्टेटमेंट. अगर ये एक वाक्य है तो हमें फुल स्टॉप लगाना है. आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है. ये एक सेंटेंस है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, तो फुल स्टॉप लगाएंगे. क्वेश्चन मार्क इफ इट इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे अगर ये एक सवाल है, एक प्रश्न है. एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है. क्या, क्यों, कहाँ, कैसे. जब सवाल की बात आ जाएगी तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. उम्मीद है आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क. सो व्हाट इज योर नेम? आई होप दिस इज क्लियर. सो अब एक छोटा सा एक्सरसाइज है, 10 सेकेंड फटाफट आप इसको लिख करके और बना लो. वीडियो को रोक दो 10 सेकेंड के लिए, इसको नोट डाउन करो कॉपी में और फिर इसको आंसर करो. फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि अब 10 सेकेंड के बाद मैं आंसर दूंगा. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Now I am going to give answer. See, what is the time? It's a question, so question mark. Let me use pencil. So here what are we going to do? Very first thing, what is the time? Question mark, because this is a question. He is my brother. He is my brother. It's a sentence, so full stop. Now may I have a biscuit please? Somebody is asking for biscuit, so may I have a biscuit please? So question mark. Now you are singing, ta-na-na-na, you are singing, so this is a statement that somebody is telling that you are singing. So what is your question? What is your question people? So now what? Again this is a question, so question mark. I hope you understood how to do it. Exercise B, we'll talk later on next exercise, but before this we need to learn something. Let me erase something and then learn. So let me delete it first. So people, what do you understand by capitalization? Many people speak incorrect or do mistake in pronunciation, so please write it and then speak. Capitalization. So capitalization. So please speak with me. Capitalization. Please speak with me. Capitalization. Capitalization. So this is the correct pronunciation of this. So what do you understand by capitalization people? What do you understand by capitalization? Because we already learned in the grammar section, so you must know, you knows that what is the correct meaning of this. So here first of all, meaning of capitalization is, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि सेंटेंस में लिखते समय, किसी वाक्य को लिखते समय
किस लेटर को हमें कैपिटल में लिखना है, इसके जो रूल्स होते हैं वो कैपिटलाइजेशन के अंदर आते हैं कि किसी वाक्य में कौन सा वाला लेटर बड़ा लिखा जाएगा और कौन कौन से लेटर्स छोटा लिखा जाएगा, ये जो आके बताता है ये कैपिटलाइजेशन बोलता है। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स लाइक डू आई नो you, do I know you? So in this sentence you can see you is capital and do I know you? So this letter is capital, all are small. Is it correct form? Is it correct? No, this is not correct. First thing, in any sentence first letter should be capital. किसी भी वाक्य में पहला वाला लेटर कैपिटल होगा। एंड I will be written capital always. I को हमेशा ही कैपिटल में लिखा जाता है। इसके अलावा किसी भी लेटर को कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, बाकी सबको स्मॉल में लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये सेंटेंस को थोड़ा सा डिलीट करते हैं एक सेकंड के लिए, और सेंटेंस था डू आई नो राम, डू आई नो राम। तो देखिए कि इसका जो पहला लेटर था छोटा था, तो इसको इट शुड बी कैपिटल। आई छोटा है, जबकि आई को हमेशा ही अकेले लिखने पे बड़ा लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है। और किसी भी नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, आखिरी वाला नहीं या बीच वाला नहीं। इन तीन के अलावा कभी भी कोई भी सेंटेंस में कोई सा भी सेंटेंस का कोई सा भी लेटर कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा? पहला रूल कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। एनी इनिशियल्स ऑफ अ सेंटेंस शुड बी कैपिटल। आई को हमेशा कैपिटल लिखेंगे। आई शुड बी रिटन, आई विल बी कैपिटल ऑलवेज। नाउ first letter of any name will always be capital. किसी नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। So we have one exercise on this. Please have a look. We have one more exercise. Please have a look on this. So it was exercise A. So it is saying use of capitalization for I. I का एग्जाम्पल देखिए, डू आई हैव टू गो। सो आई इज कैपिटल, आई बीच में आ रहा है लेकिन फिर भी कैपिटल है। क्यों? क्योंकि आई हमेशा कैपिटल होगा। इनिशियल्स मतलब शुरुआत, किसी भी इनिशियल्स मतलब अगर एक चीज़, हाँ एक रूल यहाँ पे मैंने छोड़ा है, चलिए किताब से ही समझ लेते हैं। इनिशियल्स मतलब होता है किसी नाम का फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म अगर लिख रहे हैं, या फिर किसी नाम का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। किसी भी नाम का फर्स्ट लेटर ऑफ अ नेम विल ऑलवेज बी रिटन एज कैपिटल, चाहे आप उसको शॉर्ट में लिखो या फुल नाम लिखो। जैसे कि मुझे लिखना है राहुल कुमार, अगर मैंने आर लिख दिया तो सिर्फ आर भी लिखूंगा तब भी आर कैपिटल लिखा जाएगा, राहुल भी लिखूंगा तब भी राहुल का आर कैपिटल ही होगा। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। आई इनिशियल्स, माई फादर्स नेम इज RS। RS है मतलब राहुल शर्मा नाम होगा, लेकिन राहुल सिंह शर्मा होगा तो राहुल सिंह शर्मा है, लेकिन आर ही लिखेंगे, सिर्फ एस को ही लिखेंगे, फिर भी इसको कैपिटल ही लिखेंगे, स्मॉल नहीं लिखेंगे। फर्स्ट लेटर ऑफ ए नेम, किसी नाम का पहला लेटर, जैसे कि राहुल है उसका आर, शर्मा का आर और मंडे का एम, किसी भी नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली का डी कैपिटल होगा। नाउ फोर्थ रूल, फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य के पहले शब्द के पहले लेटर को हमेशा कैपिटल में। द फूड इज हॉट, इस सेंटेंस का पहला वर्ड है द और उस पहले वर्ड का पहला लेटर है टी, सो टी विल बी
कैपिटल। अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज, इसको आपको सही करना है, कैपिटलाइजेशन करके लिखना है और पंक्चुएशन का भी इस्तेमाल करना है। सो ध्यान से देखिए, प्लीज रीड केयरफुली एंड मेक करेक्शन इन दीज 3 सेंटेंसेज A, B, C। यू हैव 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So please understand what is going to happen here. Like, my new friend is Alok. So this M should be capital, क्योंकि M जो है इस सेंटेंस का पहला लेटर है। After that आलोक का A, आलोक एक नाम है तो आलोक का A कैपिटल होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा जो मिसिंग है। रोहित वॉज बॉर्न इन जनवरी। सो रोहित का R कैपिटल होगा। पहली बार दो रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। पहला रूल ये है कि ये सेंटेंस का पहला लेटर है, पहले वर्ड का पहला लेटर है। दूसरा, रोहित एक नाम भी है तो रोहित का R कैपिटल होगा। उसके बाद जनवरी का J कैपिटल होगा, क्योंकि जनवरी एक महीने का नाम है। यू विल गो टू लंदन इन जुलाई। आप जुलाई में लंदन जाएंगे। अब देखिए, वाई जो है एक सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर है, इसलिए वाई को कैपिटल। फिर लंदन जो हमारा नाम है, इसका पहला लेटर L को भी कैपिटल। फिर जुलाई एक महीने का नाम है तो इसके पहले लेटर को भी कैपिटल, J भी कैपिटल में ही लिखा जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। प्लीज कीप राइटिंग, प्लीज मेक नोट्स। ओके, very good Rehnuma, where you are giving answer, fantastic, very nice. I can see in the chat section now. Now next question, for you all, what is listening? We have done this thing, this word, so you tell me what is listening. What is listening for you? आपके लिए listening क्या है? What is listening for you? You know, listening needs patience. Patience होगा तभी आप सुनोगे। And listening is very very important. आप कभी भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखना, कामयाब इंसान को देखना, who is at the top, who is somebody, जो कुछ है, they will listen more and speak less. Why? ऐसा नहीं कि उनको बोलना नहीं आता, they know how to speak, they know what to speak, what they speak but they speak less because they know who speaks less, their words are more valuable than those who speaks more. उनके शब्द ज्यादा महत्व दिए जाते हैं, ज्यादा सम्मान दिए जाते हैं, जो सुनते ज्यादा और बोलते कम हैं, पर बोलते जरूर हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मौके पे भी चुप रहना, वैसा गूंगा भी नहीं बनने को कह रहा, ठीक है। So listening is very important part of our personality, is the very important part of our learning, is the very important part of your English speaking. How? Please answer. How? This is the very important part of speaking. This is the very important part of your personality. This is the very important part of your learning process. As we have done last lesson में क्या बोला था वीडियो में स्पीकर ने कि सही तरीका किसी भाषा को सीखने का, इंग्लिश को सीखने का है कि आप सुनो और पढ़ो ज्यादा, बोलना तो अपने आप आ जाएगा, है ना। If you are watching my video carefully, if you are watching my video attentively, if you are watching my video regularly and with punctuality, you will definitely learn a lot. It's my guarantee. You will be able to speak more if you listen each and every word carefully and try to repeat my words, that what sir is saying and how sir is speaking those words. See this part, how I am pronouncing each words.
Now people, have a look. Listening is important for learning. अगर आप यहाँ पर सुनोगे ज़्यादा, मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे, ज़्यादा ध्यान से देखोगे, रेगुलर देखोगे और समझ के देखोगे, तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा. क्लास में अगर टीचर को ज़्यादा सुनोगे तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा, और किसी गलत इंसान को ज़्यादा सुनोगे तो गलत चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और सीख जाओगे फिर, है कि नहीं. पर्सनैलिटी, इफ़ यू लिसन समबडी इट्स मीन यू आर रेस्पेक्टिंग दैट पर्सन. कभी कभी आप देखते हो, आप पापा बच्चे आ रहे होते हैं और आप सुनते नहीं, आप इधर उधर देख रहे होते हैं, बाबू जी को बड़ा जोर का गुस्सा आता है, माता प्राक, अबे क्या करता तू, सुन सही से. मतलब कि वहाँ पे उनको ऐसा फील हुआ कि आपने न सुनकर उनकी बेइज्जती करी है. अगर आप मुझसे बात करो और मैं ऐसे इग्नोर करूँ, इधर उधर घूमूँ, इट्स मीन आई एम इंसल्टिंग यू, आई एम नॉट गिविंग रिस्पेक्ट यू. लिसनिंग मीन्स रिस्पेक्ट. आप अगर किसी को सुनते हो, कोई आपको कुछ कह रहा है, आप ध्यान चुपचाप सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, इट्स मीन आप उस इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हो. अगर वो इंसान आपका टीचर होगा तो आपको और ज़्यादा ध्यान देगा, अच्छे से पढ़ाएगा. अगर आपका बॉस होगा तो आपके प्रोग्रेस के लिए काम करेगा कि हाँ वो बंदा मुझे अच्छे से सुनता है, वो मेरा कहना मानता है. आप ज़्यादा मानते हो कम मानते हो वो अपनी जगह है, लेकिन सुनते हो ध्यान से, इट मैटर्स अ लॉट. आप अपनी जगह पे जा रहे हो, कहीं पढ़ाने जा रहे हो, कहीं पे जॉब करने जा रहे हो, एंड वहाँ पे आपका बॉस या घर वाले या पेरेंट्स अगर आपको कुछ कह रहे हैं, आपका बॉस कुछ कह रहा है, आप ध्यान से सुनते, यस बॉस यस प्लीज से. और सुनने का ये मतलब नहीं है कि आप जी जी यस यस जी जी यस यस, ऐसा नहीं करना है. ध्यान से सुनना है और सुनने के साथ आपको जो बातें समझ में आ रही हैं, जो सिचुएशन है, एज पर सिचुएशन योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी देयर. ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, इस चेहरे से पता चल जाता है कि आप ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि आप इग्नोर कर रहे हो. सिर्फ ऐसे घूरना नहीं होता है कि हाँ सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. सुनना है तो एक्सप्रेशन के साथ, यस सर फैंटास्टिक. अगर कुछ अच्छी बात हुई, कुछ बुरी बात हुई तो यस यू आर राइट, इट हैपेंड अ लॉट बैड विद दैट पर्सन. सो एक्सप्रेशंस आने चाहिए, इट इज़ द फैक्ट. अगली चीज़ स्पीकिंग. इफ़ यू लिसन मोर, अभी आप सुन रहे हो मेरी वीडियो को, मैं ज़्यादातर आजकल इंग्लिश में बोल रहा हूँ, अगर आप वर्ड्स का इस्तेमाल जो मैं कर रहा हूँ उसको मेरे साथ रिपीट करते हो, वीडियो को बैक करते हो, बैक करके फिर से उस वीडियो को देखते हो और मेरे साथ वर्ड्स को दोहराते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी, आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी. तो सुनोगे तभी तो बोलोगे. एक छोटा बच्चा जो भी जन्म लेता है धरती पे क्या करता है, पहले तो 1 आध साल सुनता ही है वो लोगों को, धीरे 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 सुनता है, और जो वो सुनता है वो वही बोलता है. आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि गुजरात में पैदा हुआ बच्चा क्या कहते हैं मद्रासी बोलने लगे, और मद्रास में पैदा हुआ बच्चा गुजराती बोलने लगे. कभी देखा है ऐसा? कभी हरियाणा में पैदा होने वाले बच्चे को बिहारी बोलते देखा है? छोटे बच्चे की बात करूँ, 1 आध 2 3 4 5 साल के. और कोई बिहार में पैदा होने वाला बच्चा क्या आपको कभी हरियाणवी बोलते हुए दिखेगा? नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसने जब पैदा हुआ, जब इनिशियल स्टेज पे था, तो उसने सुना, ऑब्जर्व किया, सिर्फ सुना सुना सुना, पढ़ा, सुना, रीड किया, चीज़ों को रीड किया और सुना. तो जो सुना है, जो यहाँ छपा है, वही तो आउटपुट होगा ना. सो देखो लिसनिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इज लिसनिंग. लिसनिंग, वॉचिंग एंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. सो हमारे जो मिस्टर AR हैं, Mr. AR is saying the same things in their video, with the video which I will send with today's link, and today you need to watch that video also, that video too. So please watch that video too at least once for better understanding of listening, and notice which type of punctuations your Mr. AR is using in his video. That video is not a video, that is a video graphic, means more writing less speaking or no speaking. वो जिस वीडियो में ज़्यादा लिखा जाए और बोला न के बराबर जाए या फिर बोला ही ना जाए, उसको वीडियो ग्राफिक कहते हैं. मतलब पिक्चर्स, वर्ड्स के थ्रू आपको वीडियो दिखाना.
I hope this part is clear to you all. So now a question for you, how can you be a good listener? How can you become a good listener? आप एक अच्छे listener कैसे बन सकते हो? This is also part of that video. उस वीडियो में ये भी बताया गया how can you become a good listener. So people, you need to be patientful. आपके अंदर सब्र होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए कि हाँ ध्यान से सुन रहे हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हम साथ में नोट्स बनाएं, देन दैट इज़ फैंटास्टिक वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं बड़े ही फैंटास्टिक की तरफ। Eats, shoots and leaves. So what did you understand by this sentence? Eats, shoots and leaves. Eats, shoots and leaves. Eats, shoots and leaves. So what is the meaning of this sentence? इस सेंटेंस का कुछ मतलब आ रहा है खाओ तने और पत्ते, खाओ तने और पत्ते। So if we will use a comma here, it shoots and leaves, तो यहाँ पे अब क्या मतलब हो जाएगा? खाते हैं खाते हैं क्या? डंठल, टहनियाँ और पत्ते, ठीक है। और पहले क्या मतलब हो रहा था? खाओ गोली मारो और पत्ते, खाओ गोली मारो पत्ते, तो मतलब ही चेंज हो गया जब हमने बोला इट शूट्स एंड लीव्स। अब इसका मतलब हो गया खाते हैं, शूट्स का मतलब होता है गोली मार देना, टहनियाँ भी होता है, पेड़ के जो डाल होते हैं, डाल या टहनियाँ, तो टहनियाँ हो गई, तो हम टहनियाँ भी खाते हैं और पत्ते भी खाते हैं। इस पे हमारे पास एक एक्सरसाइज है आपके बुक में। चलिए बुक का एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट्स कंप्लीट आवर बुक्स एक्सरसाइज फास्ट। सो पीपल, यहाँ पे बुक्स एक्सरसाइज सी में कुछ रूल्स हैं कॉमा के लिए। अब ध्यान से पढ़ते हैं रूल को। रूल नंबर 1, इन लिस्ट्स ऐड अ कॉमा एट द एंड ऑफ अ लॉन्ग लिस्ट जस्ट बिफोर द वर्ड एंड। किसी वाक्य में, किसी लंबे वाक्य में, एक वाक्य में जब यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों, लिस्ट मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में चर्चा की जा रही है, तो हर आइटम के बाद कॉमा लगा देना है और एंड से पहले भी कॉमा लगाना है। कैसे? हाउ? आई हैव माई कैमरा के आगे कॉमा, मनी के आगे कॉमा, एंड एयरप्लेन टिकट। तो एंड, जो भी एंड आ रहा है, एंड या फिर और आएगा, उससे पहले कॉमा ख़त्म हो जाएगा। एंड के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे और एंड को लगाएंगे आखिरी ऑप्शन से पहले। तो देखिए, आई हैव माई कैमरा कॉमा, मनी कॉमा, और एंड के बाद कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। अगला, दिस शॉप हैज़ रेन प्रूफ कोट्स। यहाँ पे रेन प्रूफ कोट हैं कॉमा, हाइकिंग बूट्स हैं मतलब जूते हैं, एंड बैक पैक्स हैं और झोले मतलब बैग हैं जो बैग रखते हैं कंधे मतलब पीठ पे। तो देखिए, एंड से पहले कॉमा है लेकिन एंड के बाद कॉमा का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हर ऑप्शन के बाद कॉमे का इस्तेमाल होता है। इसमें 3 ऑप्शन था तो आखिरी वाले ऑप्शन से पहले एंड लग गया और बाकी 2 ऑप्शंस के बाद कॉमा लगा हुआ है। शी वोर अ प्रिटी कॉमा ग्रीन ड्रेस। तो लंबी सेंटेंस है तो वहाँ पे भी समझदारी बढ़ाने के लिए कॉमा लगाएंगे कि उसने पहना है बहुत ही प्यारी हरी कलर की ड्रेस को। अब अगला रूल कहता है, इन फ्रंट ऑफ फॉर एंड नॉर बट और येट सो। मतलब कि जो कंजक्शन हमने पढ़ा था याद है ना, तो कंजक्शन से पहले ना कि बाद में नहीं लगाते हैं। सो कंजक्शन से पहले हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं कंजक्शन से पहले। अब देखो यहाँ पे, जूली वॉन्ट्स टू गो टू यूनिवर्सिटी कॉमा, सो बट
बट से पहले लगा कॉमा, बट शी didn't get admission. The neighbors were making a lot of noise at 2 a.m. So is a conjunction. So before so we have a comma here. Before so we have a comma. The teacher talked about the test, and before and we got a comma. The students played with their phones. So here we have some conjunctions. So before conjunctions we need to use comma. After an introduction, many sentences begin with an introduction that should be separated from the rest of the sentence. अगर किसी वाक्य में किसी चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर हम वाक्य में पहले लिख रहे हैं, मान लो किसी सेंटेंस में हम किसी वर्ड को, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और उस जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर हम लिख रहे हैं, तो उस सेंटेंस या उस फ्रेज या उस वर्ड के बाद कॉमा लगाते हैं। अब देखिए कैसे। Without water the plants will die. तो देखिए हमें वाटर बिना, पानी के बिना, इस दो वर्ड को हाईलाइट करना था, तो हमने क्या किया, इसको सेंटेंस से पहले लिख दिया। सेंटेंस से जब पहले लिखेंगे आखिरी आने वाली चीज़ को, जिस चीज़ को आखिरी में होना चाहिए, अगर उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देंगे तो उसके बाद कॉमा लगाएंगे। विदाउट वाटर कॉमा द प्लांट्स विल डाई। अब देखिए अमेरिका को हाईलाइट करना था। इन अमेरिका फुटबॉल इज अ पॉपुलर स्पॉट, तो इन अमेरिका के बाद कॉमा लगा देंगे। व्हेन द पेंटिंग इज फिनिश्ड कॉमा द ऑफिस विल लुक बेटर। यहाँ देखिए दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है सिर्फ कॉमा की मदद से। लंबे लेंदी सेंटेंस हमने बनाए हैं, तो इसको क्या करेंगे, दो सेंटेंसेस को कॉमा से सेपरेट कर देंगे, फ्रेज को सेपरेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ प्रूफ रीड करना है, और प्रूफ रीड कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। 10 सेकंड है आपके पास, या तो आप ठीक करो उसके बाद मैं ठीक करूँ। यू विल गेट 10 seconds टू करेक्ट दीज सेंटेंसेज। इफ विल नॉट करेक्ट आई विल करेक्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ प्लीज मैच योर आंसर। आई हैव अ बर्ड कॉमा अ डॉग कॉमा एंड अ कैट। नाउ आई लाइक मैथ comma history comma and grammar. Now Lata comma please sit down. Rohit lives in London comma England. Our postman Jamil comma smiles a lot. So comma will be between Jamil and smiles. I hope this thing is clear. Now we have exercise D. So you need to proofread exercise D. You need to proofread. Now let's understand what is the meaning of proofread. Before it, please have a look here. You are going to rate this lesson. You are going to give feedback that how's your vocabulary going on, how's your sentence structure going on, how your pronunciations going on, how's your confidence, and how are you doing with your notes. So this is your rating. This is your rating. Please rate yourself out of this 3. 1 marks, 2 marks, 3 marks. So give yourself out of 3. Now let's understand what is proofread. What is the meaning of proofread? Let's understand what is the meaning of proofread. So this is proofread. अगर आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक पैराग्राफ दिया गया, यू गॉट अ सेंटेंस और यू हैव अ पैराग्राफ रिटन एंड यू नीड टू चेक एंड करेक्ट मिस्टेक्स फ्रॉम देयर, देन यू आर डूइंग प्रूफ रीड। अगर आपको एक वाक्य या वाक्य का समूह मतलब पैराग्राफ दे दिया गया है और कहा गया है कि इसमें जो गलतियां हैं उसको अंडरलाइन कर दो, सही कर दो, तो ये काम जो कहलाता है प्रूफ रीड कहलाता है। प्रूफ मतलब प्रूफ करना, प्रूफिंग करना, रीड मतलब पढ़कर,
किसी लिखी हुई चीज़ को पढ़कर ठीक करना, समझना, गलतियां निकालना, गलतियों को ठीक कर देना, उसको कहते हैं प्रूफ रीड। और यही काम होता है बेसिकली एक एडिटर का, न्यूज़ एडिटर का, हु इज सिटिंग इन अ न्यूज़ ऑफिस, लाइक इन अ न्यूज़पेपर्स ऑफिस, इन अ मीडिया हाउस ऑफिस, न्यूज़ चैनल्स ऑफिस. So editor's job is to make correction. So our next lesson is be a top editor. Tomorrow we are going to learn कि हम कैसे एक महान और बेहतरीन एडिटर बन सकते हैं, कैसे हम प्रूफ रीडिंग में फैंटास्टिक कर सकते हैं, हाँ, धमाल मचा सकते हैं. ठीक है. Now please rate this lesson, give feedback to this lesson. इस lesson को feedback दीजिए out of 5. If you learned a lot, then write 5. If you didn't learn anything or less learned, then give 4. Okay, so thank you so much for today everybody. I hope you learned a lot. So please like this video if you learn anything. अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक करें. और अगले लेसन बी अ टॉप एडिटर सीखने के लिए, लेसन नंबर 21 को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मौका मिल सके अगले लेसन को सीखने का. और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपकी तरह सीखें, उनका भी भला हो, वो बड़ी महंगी फीस और मोटी मोटी फीस दे के ना सीखें, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी फीस नहीं दे सकते हैं, गरीब हैं, या फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी में हैं, तो उनकी मदद करें इस क्लास के बारे में बता के कि हाँ फ्री में सीखा जा सकता है. प्लीज़ टेल पीपल दैट इट इज़ टोटली फ्री एंड यू कैन लर्न English speaking free of cost and online. So thank you so much for today. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Yeah.